امن جرگہ کرم میں قبائل کے درمیان تاحال امن معاہدہ نہ کرا سکا۔ 6 قبائل کے مشران نے تحفظات کی وجہ سے فیصلے پر دستخط نہیں کیا۔ مائدین نے مشورہ کر کے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ مائدین اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ 2 اکتوبر سے بند۔ پارا چنار سمیت اپر کرم کے 100 سے زائد علاقوں کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہوئے کئی دن گزر گئے۔ اسپتال میں ادویات کی قلت مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت۔ مرکزی سڑک کی بندش کے خلاف کرم پریس کلب سمیت مختلف مقامات پر متاثرین کا دھرنا جاری ہے۔ پارا چنار واقعات کے حوالے سے کراچی میں دھرنا جاری ہے، جبکہ راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ABN نیوز کے نمائندے نبیل میر جج سے، جو اس وقت ملیل کے سٹیل ٹاؤن قومی شاہراہ پر موجود ہے۔ نبیل بتائے گا۔ بالکل، پارا چنار واقعات میں کراچی کی 10 سے زائد جو ہیں سڑکیں مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہیں۔ قومی شاہراہ مکمل طور پر بلاک ہے۔ ملیر، قائد آباد، ملیر سٹی، نمائش چورنگی، مختلف جو علاقے ہیں، مختلف جو قومی شاہراہ ہیں مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہے۔ لوگ جو ہیں، شہری جو ہیں، ان کو آنے جانے میں آج دشواری پیش آ رہی ہے۔ قومی شاہراہ بلاک ہونے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کن کن مشکلات کو ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اصل میں 3-4 دن سے یہ پرابلم چل رہا ہے۔ یہ پارا چنار آنے جانے میں جو ڈیوٹی والے حضرات ہیں، آج بھی ہم نے ڈیوٹی سے چھٹی کرنی پڑی، کیونکہ ساری شاہراہیں مین جو روڈ ہیں، مطلب 12 مقامات ہیں کراچی کے جو مطلب بند پڑے ہوئے ہیں ابھی، جس کی وجہ سے مطلب فیملیز جو ہاسپٹلز ہیں، مطلب جو ایمرجنسی جن کو مطلب ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کوئی اسپتال میں، کسی کو اسپتال جانا ہے، تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور جلد سے جلد ان کے مطالبات مان کر اور یہ تمام چیزیں حل کی جائیں، جتنی جلدی ہو سکے بہتر ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے کرے، معاملات طے کرے، مذاکرات کرے ان کے ساتھ اور یہ ختم کروائے۔ جی، شہری کی بات سنی، شہری نے کہا ہے کہ ہمیں جو آنے جانے میں دشواری پیش آ رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان کے مطالبات منظور کیے جائیں اور شہریوں کو جو آنے جانے میں دشواری پیش آ رہی ہے ان کو ختم کیا جائے، اور روڈ جو مکمل طور پر بلاک ہیں، کراچی کی مختلف سڑکیں مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہیں، قومی شاہراہیں بلاک ہے، جس سے شہری جو ہیں سخت پریشان ہیں۔ جی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ کرم تنازع پر فریقین کے درمیان عمومی طور پر اتفاق رائے ہو چکا۔ صرف چند نکات پر ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ اب جرگہ منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔ مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا خیبر پختونخوا حکومت صدی پرانے تنازع کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گرینڈ جرگے کی کوششوں سے تنازع حل ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کمپنی کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسکریپ کی فروخت کا انکشاف ہوا۔ 7 کروڑ 69 لاکھ سے زائد مالیت کے اسکریپ کی خلاف ورزی اور خلاف ضابطہ فروخت کی نشاندہی سامنے آ گئی۔ آڈٹ نے معاملے کی انکوائری اور ذمہ داری طے کرنے کی سفارش کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، 7 کروڑ 59 لاکھ کی بے ضابطگی سامنے۔ پاکستان انجینئرنگ کمپنی کے قواعد کی خلاف ورزی، اسکریپ کی فروخت کی نشاندہی۔ آڈٹ نے معاملے کی انکوائری اور ذمہ داری طے کرنے کی لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان انجینئرنگ کمیٹی کے قواعد کی خلاف ورزی پر آپ کو بتائیں کہ 7 کروڑ 59 لاکھ سے زائد مالیت کے اسکریپ کی خلاف ضابطہ فروخت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سیون شریف پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری دوپہر 1 بجے سیون شریف پہنچ کر لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دیں گے۔ صدر مملکت کی آمد کے پیش نظر سڑکوں پر ویلکم پینفلکس لگا دیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں وہ یک طرفہ اور متنازع فیصلے کرے۔ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر موٹر وے پر ختم ہوتی ہے۔ میٹرو سے سیاست انہوں نے شروع کی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاہدہ ہوا ہے۔ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری شکایت کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ ہم نے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی کے بجائے اسے تیز کرنا تھا۔ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبل میں ایسا کیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتی ہیں، وہ بھی جب اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے، مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں؟
वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून मखलूत हुकूमत में अहम स्टेक होल्डर के तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ अपनी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पुरज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मुआशी और सियासी बहरानों से कामयाबी से निकाला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने दावा किया कि अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल कल वज़ीर आज़म बन सकते हैं। सैयद खुर्शीद शाह ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो भीख मांगकर 70 वोटों पर कमजोर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मसाइल की खातिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ है। पानी की तकसीम पर पीपल्स पार्टी ने कभी समझौता किया और न आइंदा करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीडीएम हुकूमत में भी हम मुज़ाकरात का कहते थे, समझ नहीं आता 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाए। पीटीआई वाले कहते थे हमारी मुज़ाकरात की औकात नहीं। बानी पीटीआई पहला सियासतदान जो अमरीका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज़ का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है कि है। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, कदी तौर पे खिलाफ नहीं हूँ। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। पीटीआई की जदोजहद का मरकज कानून की हुक्मरानी है। हम तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। हम किसी भी पुरतशद्दुद और एक्सट्रीमिज़म के बिल्कुल हामी नहीं हैं। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, समाजी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। बानी पीटीआई का मुलाकात के लिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। ऐसा हुआ तो मुलाकात का सोचेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए। हमने इनकार कर दिया। कहा 26वीं तरमीम में हमने शख्सियात के दबाव की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को ख्वामखा छिड़ा गया। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। डीआई खान, बनू और टांक दहशतगर्दों के हवाले हैं। टांक से अदालती और सरकारी दफातर भी डीआई खान मुंतकिल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं भुट्टो को फांसी देने और शहीद मोहतरमा को निशाना बनाने वाले गलतफहमी का शिकार थे। उन्होंने सोचा भी ना होगा कि शहीद कमीशन जियाले आगे लेकर चलेंगे। मोहतरमा कमीशन मुकम्मल करेंगे। जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशाना बनाकर शहीद किया, वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे। उन्होंने ये नहीं समझा, उन बेवकूफ़ों ने, उन जाहिलों ने ये नहीं सोचा होगा कि शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद भी उनके मिशन को, उनकी जमात, उनके चाहने वाले, उनके जियाले आगे लेकर चलेंगे। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा मार दो, जला दो, गालम गलोच, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत और अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही।
9 मई के मुजरिम मुल्क को लूटने वाले चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। 17 साल से रेड बुक का इंतहाई मतलूब जो है वो इंसानी स्मगलर गिरफ्तार हो गया। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 17 साल से मतलूब इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त अमजद अली के नाम से हुई। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड के घनाउने जुर्म में मुलविस है। इंसानी स्मगलर 17 साल से रेड बुक में है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई, इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। नए साल के पहले दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर से ज्यादा इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपए से फी लीटर से ज्यादा इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्टडी के लिए छुट्टी लेने वालों के लिए गाइडलाइन मुतारिफ कर दी। जारी मरासले के मुताबिक गाइडलाइन पर अमल न करने से 3 महकमों का वक्त ज़ाया किया जाता है। नामुकम्मल दरख्वास्तों पर गौर न करने का फैसला। स्टडी के लिए छुट्टी लेने वाले को शराइत पूरी करना होंगी। तमाम दस्तावेजात की मुसद्दिका कॉपी, कोर्स दौरानिया, दाखिला खत, कोर्स दौरानिया और वापसी की तारीख वाज़ेह करना लाजमी करार दे दिया गया है। कश्मीर में मुगवियों की बाजियाबी के लिए शटर बंद हड़ताल जारी। शाही बाजार, मुस्लिम बाजार, अलमदार चौक, लेडीज मार्केट, तमाम छोटे बड़े कारोबार मुकम्मल बंद है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डाकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुख्तलिफ बाजार बंद। कश्मीर में मगफियों की बाजियाबी के लिए शटर बंद हड़ताल इस वक्त जारी है। कलात में कोयटा कराची शाहराह 24 घंटे से बंद। मुबैना तौर पर गायब होने वाले शहरी के लवाहिकीन का कौमी शाहराह पर एहतजाज और धरना जारी है। एहतजाज और धरने में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से कौमी शाहराह कोयटा से कराची जाने वाली रोड बंद है। शदीद सर्दी में रात भर मुसाफिर ठिठुरते रहे। आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती होते ही बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया। बिजली के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली का निज़ाम ट्रिप कर जाने का खदशा पैदा हो गया। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल आज़ाद बिजली की खपत में खतरनाक हद तक इजाफा। ज़राए के मुताबिक फीडर सिटी 1 में गुज़िश्ता साल 2023 की निस्बत इस साल बिजली के इस्तेमाल में 41%, जबकि फीडर सिटी 3 में बिजली सस्ती होने के बाद बिजली के इस्तेमाल में 29% इजाफा हुआ। हमजा काटिल से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमजा काटिल, बिजली के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आया है। जी बिल्कुल, हालिया अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के बाद जहां बिजली के सस्ते होने के समरात आम आवाम तक वहीं पहुंचे हैं, तो वहीं पर बिजली सस्ती होने के बाद जो उसका बेदरेग इस्तेमाल है वो भी एक नया जो है नई मुश्किल जो है पैदा कर रहा है। ऐसी तो ABN न्यूज़ ने जो डेटा एक मरतब किया है गुज़श्ता साल सिटी। हमजा काटिल, हम आपकी आवाज़ सही से सुन नहीं पा रहे। हमजा काटिल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती होते ही बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। आपको बताएं, लिया में गैरत के नाम पर कत्ल। शौहर ने भाई और बाप के साथ मिलकर बीवी को गला घोट कर कत्ल कर दिया और लाश को दरियाए सिंध में बहा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। लिया में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने गला घोंट कर लाश को दरियाए सिंध में फेंक दिया। मुकदमा दर्ज हो गया। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से आए रोज शहरियों से बहसो तकरार के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस मुल्तान पहली मरतबा ट्रैफिक वार्डन्स की ट्रेनिंग करवा रही है, जिससे ट्रैफिक वार्डन्स के रवैयों में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी दिलजेब, बताएगा ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जी बिल्कुल, आवाम की शिकायत के पेश नज़र ट्रैफिक वार्डन्स की एक स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इसमें अदम बर्दाश्त के हवाले से जो है सेशन रखे गए हैं। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं, हमारे CTO मुल्तान मौजूद है। जी, हम एक प्रोग्राम 4 वीक्स प्रोग्राम हमने ये इनिशिएट किया, ये इनिशिएटिव लिया CTP मुल्तान ने अपने तमाम ऑफिसर्स को, उन सारे ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स से हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स से हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बाकी लोग हैं, इंटेलिजेंशिया से हैं, वो आके इनसे एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने जो CTO मुल्तान की बात सुनी, कहना था कि अदम बर्दाश्त को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिससे जो है ख़ास तौर पे जो शहरियों को मसाइल होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स की हमसे वो कम होंगे। जी,
सर्द हवाएं और छुट्टी का दिन, लाहौर के शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहर भर के मशहूर नाश्ता पॉइंट्स पर गर्मा गर्म चाय, चने, निहारी और हलीम के जायके ने रौनक लगा दी। शहरियों की बड़ी तादाद ने दोस्तों और फैमिली के साथ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया, जबकि कई अफराद ने ये मज़े घरों तक पहुंचाने के लिए पार्सल करवा लिया। अली नासिर बताएंगे। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है। लाहौरियों की बड़ी तादाद सुबह का नाश्ता करने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट का रुख करती है और मैं इस वक्त मजंग के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। पीछे के मनाजिर आप देख सकते हैं कि श्री पाए और नान चने लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हजूम है, काफ़ी रश है। उनका ये कहना है कि पूरा हफ्ता हम कामकाज में मसरूफ़ होते हैं और इतवार के रोज़ हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली के लिए नाश्ता लेकर भी जाएं या नाश्ता बाहर से करें। इस इलाके के अंदर दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं नाश्ता करने के लिए। लाहौर के जो मेन पॉइंट्स हैं, मजंग है, लक्ष्मी चौक है, ये वो इलाके हैं जहाँ के ख़ास तौर पर श्री पाए और नान चने पूरे लाहौर के अंदर मशहूर हैं। तो लाहौरियों का ये कहना है कि पूरा हफ्ता हम काम काज में मसरूफ़ होते हैं और अब हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी फैमिली के हमरा बाहर से नाश्ता करें। और आप देख सकते हैं ये मनाजिर कि यहाँ पर नान चने खरीदते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, श्री पाए खरीदते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ मैदे और जिगर को ठंडा रखने के लिए इसके बाद शहरियों का ये कहना है कि दूध, दही और लस्सी का इस्तेमाल भी हम करेंगे। बहरहाल लोगों के चेहरों पर रौनक है, खुशी है और अपनी फैमिली के हमरा बाहर आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर लोगों का एक हजूम भी देखने में नजर आ रहा है नाश्ता करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN। सिफर से शिवा।